Okay, got it. Thank you so much. Okay, fine. Okay, good morning, everyone, or good afternoon, good evening, beat any time. Fine, now we are done with the formalities. Now, quickly, let's get started. What we were discussing, we are still in our chapter named Current Electricity. Fine, this is the fourth episode. We'll move on to the fourth episode, and this, in today's class, we'll be discussing about Ohm's Law. If you remember, in the previous class, we had discussed about what we had discussed about. We had discussed about the word or the term or the character resistance. What is resistance? What is the cause of resistance? And what else did we discuss? What happens when a conductor is connected with the battery, and if it is not connected with the battery, what happens under those circumstances? Fine, we introduce resistance, and the symbol for the resistance is capital R, whereas the SI unit for resistance is ohm, and the symbol is like this. Fine, this is all we had discussed in the previous episodes. Now see, abhi tak whatever we have studied, those were like the basic characterizations: current, potential, and resistance. These are the three characters which we have introduced. Now the main story begins. When I say the main story begins, that means now from here onwards we'll start studying things which are asked in our examination point of view, or which are important from examination point of view. Fine, let's start. Oh, let me save this first. Okay, fine. Now this we had discussed in the previous class. Acha, I think should I close the video? Let it be. This we had already discussed in the previous class. What we had discussed is, for a continuous supply of current, the two conductors must be maintained at constant potential difference. अगर हम लोग चाहते हैं कि करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे, in that case the two conductors must be maintained at constant potential difference, because we had studied that as long as the potential difference exists, only until then electrons will flow and the current will flow. Fine, we have discussed this. Okay, and this we have seen that resistance is the obstruction given to the flow of current. That is, the current is inversely proportional to resistance. Current is inversely proportional to resistance. ये बात आप लोग को समझ लेना है कि the current is inversely proportional to resistance. This you must remember, that the current is inversely proportional to common sense है. जितना ज्यादा resistance दोगे current उतना कम flow करेगा. Resistance अगर कम हो जाएगा तो current ज्यादा flow करेगा. But provided we are assuming the fact that the potential difference which we have applied is constant, that is we have a constant potential difference. Fine. So what we are mathematically trying to say is, that resistance is inversely proportional to current. That is, which implies whenever we replace the proportionality sign with a equals to sign, जब भी हम लोग proportionality sign को एक equals to sign से replace करते हैं, हम लोग के पास एक constant आता है, that is something like this. And since in this situation, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, we are assuming that the potential difference is constant. That is, this constant which we are talking about is actually nothing
but the potential difference that is V. तो यहां पे हम लिख सकते हैं which implies R is equals to V by I. तो यहां पर हम लोग को एक रिलेशन मिल रहा है. What are we getting? We are actually getting a relation. We are actually getting a relation. And from here we can also say that V by I is equals to R, or we can also say that V is equals to I R. And this equation which connects the three parameters. अब देखो हम लोग ने बोला था कहानी के तीन किरदार हैं, करंट, पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस. And this relation which connects these three parameters is termed as Ohm's law. This we have discussed in the previous class. Fine? Fine. Okay. Let's move to the next slide. Now here comes something. अब देखो Ohm's law, समझने वाला way and to remember. This is how you will remember Ohm's law. ठीक है? Ohm's law क्या बोलता है कि suppose you have a conductor. You have a conductor. अगर ये कंडक्टर है, अगर आपके पास ये एक कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर, अगर आप इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, कैसे अप्लाई करते हो? बाय कनेक्टिंग अ बैटरी. ये क्या है? बैटरी. और ये कंडक्टर के अप्लाई करते हो तो ये कंडक्टर क्या करेगा? रेजिस्टेंस देगा. रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट का फ्लो को. अगर यहां से करंट फ्लो करता है आई, तो ये जो करंट फ्लो होगा आई, द कंडक्टर विल ऑफर सम रेजिस्टेंस. Now this diagram can be somewhat be drawn like this. बैटरी का सिंबल आपको समझ में आ गया? ये हो गया बैटरी. पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है, एंड दिस इज बैटरी. एंड वी नो द बैटरी हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस V. फाइन. ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ. बैटरी विल हैव सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, लेट दैट बी V. नाउ in order to draw resistance symbolically, we draw it like this. This is the symbol of resistance. This is the symbol of resistance, and then we join them with the help of connecting wires. मान लो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस I है, उस केस में यहां से करंट कितना फ्लो किया? I. तो अब आप ओम्स लॉ ऐसे याद रखोगे कि जब ये करंट I फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, प्लीज ध्यान सुनना हम क्या बोल रहे हैं. अगर आपके पास यहां पर एक रेजिस्टेंस है और यहां से रेजिस्टेंस R है और यहां से करंट I फ्लो कर रहा है, अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है R, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, एंड यहां से करंट I फ्लो कर रहा है, इन दैट केस आई राइट इन वर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द resistor is equal to product of product of product of resistance and current flowing through it. Current flowing through it. मतलब कि अगर आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों के अक्रॉस, ये जो एंड ए है और ये एंड बी है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, अगर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, सो इन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो हो जाता है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. किसका मल्टीप्लीकेशन? प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द current flowing through it. Product of the resistance and the current flowing through it. बात समझ में आया? ऐसे याद रखोगे. और ये सर्किट ऐसे याद रखोगे. इस सर्किट के लिए ये रिलेशन वैलिड है. अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट हो, क्या हो? सर्किट हो जहां पर आपके पास एक रेजिस्टेंस है. कितना रेजिस्टेंस है? एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है. उस सिचुएशन में आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो. अगर करंट
एंड इफ जो करंट है वो I है, देन V इज इक्वल्स टू IR। ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। ये रिलेशन कब यूज कर सकते हैं हम? सुन लो भैया, ये रिलेशन कब यूज करोगे? जब आपके पास एक रेजिस्टेंस हो, एक बैटरी हो, तभी कर सकते हैं। अगर मोर देन वन बैटरी है तो ये काम नहीं करेगा। फाइन, ऐसे याद करेंगे हम लोग। और आपको और समझा देता हूं यहाँ से। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, कैपिटल V। रेजिस्ट करंट का यूनिट होता है एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर A। एंड रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ये सारा इसका SI यूनिट्स है। अब यहां से V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहां से कोई लिख सकता है, अगर चाहे तो कोई लिख भी सकता है। अगर V इज इक्वल्स टू I R है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि I इंटू R इज इक्वल्स टू V। तो I हो जाएगा V बाई R। और 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 क्या बोल सकते हैं हम ये भी बोल सकते हैं, या फिर R हो जाएगा V बाई I। मतलब कि अगर आपको ये रिलेशन याद है, तो आपको ये दोनों चीज भी ये निकाल सकते हो। ये भी यहाँ से आई निकल जाएगा, यहाँ से आर निकल जाएगा। बात समझ में आया? मतलब कि अगर ये रिलेशन पता है तो मैनिपुलेट करके इन तीनों में से हम कोई भी दो निकाल सकते हैं। बात खत्म। बहुत बकवास कर लिया। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब आते हैं थोड़ा मजा करने। देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ, करंट कितना है? 20 मिली एम्पियर इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। मतलब कि यहां पर आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है 20 ओम। और यहां से करंट कितना फ्लो कराना है आपको? करंट फ्लो कराना है 200 मिली एम्पियर। तो बोला है इस एंड के अक्रॉस, ये जो एंड है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो वो कितना होगा, वो पूछा है। क्या है सोल्यूशन? तो एकदम इजी हो गया। तो हम लोग क्या दिया है गिवन? क्या दिया है गिवन? R दिया हुआ है, R इज गिवन 20 ओम। करंट I इज गिवन हाउ मच? 200 मिली एम्पियर। and you have to find V. Then just from Ohm's law, just use from Ohm's law. From Ohm's law, V is equals to IR. I is given how much? अच्छा अच्छा अच्छा, I'm so sorry। ये मिली एम्पियर में है, तो आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट विल बी 200 into 10 to the power minus 3 एम्पियर। फाइन फाइन, ओके फाइन। So I is how much? I is 200 into 10 to the power minus 3 into 20। तो पुट कर लो। यहाँ पर देखो, यहाँ -3 है, यहाँ पर 3 जीरो ऑलरेडी है, तो ये 1 2 3 ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो बचेगा 2 into 4, 4 वोल्ट। आंसर खत्म। समझ में आया? डन। इजी इजी। ओके नेक्स्ट। क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 1.2 एम्पियर करंट। कितना करंट? 1.2 एम्पियर। सोल्यूशन क्या दिया हुआ है? करंट आई दिया हुआ है कितना? 1.2 एम्पियर एट 60 वोल्ट। 60 वोल्ट कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट वोल्ट होता है? पोटेंशियल। दैट इज पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल इज 6 वोल्ट। अब ना प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, क्योंकि पोटेंशियल का हम लोग पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, एंड सिंबल इज आल्सो V, कैपिटल V, वोल्ट। फाइन, ओके। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब व्हाइल ग्लोइंग। क्या प्रॉब्लम है? फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर, पर आपको R निकालना है। दैट मीन्स आई आर इज इक्वल्स टू V। तो R कितना हो जाएगा? V बाई I। यहाँ पे विच इंप्लाइज आने का, विच इंप्लाइज दैट इज V कितना है? V इज 6, ये है 1.2। तो इसको सॉल्व करोगे ऊपर 60 बाई 12, दैट इज 5 यूनिट। क्या होगा? ओम। 5 ओम। आंसर समझ में आया? बस खत्म। ओम्स लॉ यूज किया, यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं घुमा फिरा के बार बार। दैट्स इट। नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। कैलकुलेट द करंट निकालना क्या है?
अरे एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। सोल्यूशन, कहाँ गया पेन? ये रहा, चलो स्टार्ट। ओके हाँ, कैलकुलेट द करंट, क्या निकालना है? कैलकुलेट करंट निकालना है। गिवन मुझे क्या करना है? करंट आई इज अननोन फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 5 ओम। फाइन, रेजिस्टेंस गिवन, एंड देन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है कितना? 3 वोल्ट। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट द करंट। कौन सा बड़ा बात है, कर लो। तो फिर से वही कहानी लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। क्या पता है हम लोग को? V is equals to I R, but over here I have to calculate I, तो उसको उल्टा लिख देते लोग, I R is equals to V, तो I is equals to V by R। यहाँ पर which implies साइन देना पड़ेगा, which implies, therefore which implies I is equals to V कितना है? What is the value of V? V is 3 volt by 5। अब क्या किया उसको सॉल्व करना है, नीचे 5 है। अब देखो, now calculation is your choice, the way you want to do the calculation, simplification it's your choice। what I'll do is I'll multiply ऊपर नीचे by 2, so I'll get 6 by 10, 6 by 10 mean 0.6 ampere। खत्म, आंसर। फाइन, easy, easy। okay, now let this question be a homework for you all। the solution to this was asked in ICSE 2016। this question will be a homework, but a solution will also be given to it in the PDF itself। but first you try it on your own, then you will look for the solution। please do it। okay, solution यहाँ पे दिया हुआ है, I'll provide in the PDF, but you first try it on your own। finally, तो अभी हम लोग ने ओम्स लॉ समझ लिया है कि उसको कैसे यूज करेंगे, बट व्हाट इज एक्चुअली ओम्स लॉ, द रियल ओम्स लॉ, द रियल वर्जन, real version of Ohm's law। Let's just discuss that। What Ohm's law has to say is that the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided the physical condition and temperature of the conductor remains constant। क्या बोला जा रहा है? बस ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास यहाँ पर ये एक कंडक्टर है, फाइन, और यहाँ पर आपने यहाँ से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, फाइन, तो यहाँ से आपने क्या किया? कंडक्टर को फिक्स कर दिया। कंडक्टर इज फिक्स्ड। व्हाट इज फिक्स्ड? द कंडक्टर इज फिक्स्ड। कंडक्टर इज फिक्स्ड। नाउ if the potential difference of the battery is applied, so what will happen? the moment we do, current will increase, current will be there। अब देखो भाई, अगर आप ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस V को बढ़ाओगे, मतलब कि the difference increases, if the difference increases the current concentrate, सुनो सुनो सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली में? डिफरेंस इन जो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज पोटेंशियल, मोर द पोटेंशियल मींस इट हैज टू डू समथिंग विद द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो करंट होगा वो ज्यादा होगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग इज पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर इज फिक्स्ड फॉर, कंडक्टर बोल लो या फिर इसको रेजिस्टर बोल लो, रेजिस्टर फिक्स है या फिर कांस्टेंट है, कंडक्टर को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट है। तो इसका यहां से तो साफ साफ हो रहा है ना कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, करंट भी इंक्रीज होगा। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
more the potential difference, more will be the current. And the same logic, if I replace this proportionality sign with a equals to sign, हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, कांस्टेंट मिलेगा. और सिंस इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन व्हाट इज कांस्टेंट, in this situation what is constant, this conductor is constant. If this conductor is constant, which parameter is constant? तो इतना समझ में आ गया कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच करंट ज्यादा हो जाएगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे, यू विल गेट अ equals to sign, say you will get a constant, and in this situation the conductor is constant. That means what is constant? The resistance of the conductor is constant. That means if I remove this proportional sign with a equals to sign, I'll get a constant, and this constant is actually the resistance of the conductor, and hence we get a same relation over here, which is your Ohm's law. The moment we talk about Ohm's law, that means V is equals to IR. The potential is directly proportional to current for constant conductor. So please don't confuse yourself. You can say resistance is inversely proportional to current when the potential is constant. You can also say that potential is directly proportional to current when the resistance is constant. ये बात समझना पड़ेगा, ये बात समझना पड़ेगा. This is also Ohm's law, this is also Ohm's law, but under this condition, this is important, under this condition. Fine. Okay, I'll just put this, both are Ohm's law under same condition. Okay, first let me erase this now. I don't require all this. I don't require these two things. Okay, fine, we're done. सुनो अब बात को. What acha, first of all, what is the limitation? Limitation is that the temperature must be constant. Temperature must be constant. And the other one is that physical conditions, other physical conditions must also be kept constant. Fine. Now we are saying that V is directly proportional to I. इसका मतलब अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं V वर्सेस I का, अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं V वर्सेस I या फिर I वर्सेस V का, डजंट मैटर, सिंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द ग्राफ शुड बी अ straight line. The graph should be a straight line. Graph should be straight line. Why? Because of Ohm's law. Why? Because of Ohm's law. That means what we are trying to say is that, please listen, इसको हम और ऐसे भी बोल सकते हैं एक बार के लिए. यहां से हम बोल सकते हैं इस लाइन से V, एक सेकंड मिटाना पड़ेगा इसको मुझे, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बोल रहे हैं इसको, प्लीज सुन लो एक बार अच्छे से. V is proportional to I. That means V is equals to some constant into I. That means which implies V by I is constant. V by I is constant. And इस constant को नाम दिया गया है resistance. ये बात समझना है आपको, ये बात समझना है कि Ohm's law में क्या कांस्टेंट है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट है फॉर अ गिवन कंडक्टर. अगर एक कंडक्टर फिक्स है तो फाइन, एंड द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट line for V versus I or I versus V, doesn't matter, it will be a straight line. And the moment it's a straight line, we can directly say that what is constant? Resistance is constant. Resistance is constant. ये बात समझो. Straight line मतलब resistance is constant. मतलब कि अगर कभी भी V वर्सेस I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, that means resistance is constant. इतना समझ में आया?
बहुत कुछ बोल दिए हैं। चलो ओके। क्वांटिटेटिव, अब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इंग्लिश है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो भैया, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ भैया बोलते हैं सीधा सीधा कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब कि अगर यहाँ पर आपके पास ये एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, या फिर कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, और यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, उस केस में इस दो एंड जो है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है, अगर मान लो ऐसा होता है ये वी ए है, इस एंड का पोटेंशियल, इस एंड का पोटेंशियल वी बी है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है वो होगा रेजिस्टेंस टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वीबी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वीबी, विच इज एक्चुअली इक्वल टू आर आई, और वी ए माइनस वीबी को ही हम लोग बोल रहे हैं वी, दैट मीन्स वी इज इक्वल्स टू आर आई। बात समझ में आया? एक ही चीज घुमा फिरा के बोल रहे हैं बार बार। ओके अब सुनो, अब सुनो एक बार, हम यहाँ से बोल सकते हैं आर आई इज इक्वल्स टू वी, विच इंप्लाइज आर आई इज इक्वल्स टू वी। अब यहाँ सुन लो, इफ आई इज इक्वल्स टू यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 एम्पियर, आई का वैल्यू यूनिटी है मतलब 1 है, तो जैसे आई का वैल्यू 1 हो गया, हम बोल सकते हैं आर इज इक्वल्स टू वी, आर इज इक्वल्स टू वी। बात समझ में आया? ये ओम्स लॉ, ये उसको उल्टा किए, अगर हम आई का वैल्यू 1 पुट कर दें, आई का वैल्यू 1 पुट कर दें, इन दैट केस आर इज इक्वल्स टू वी, दैट मीन्स the resistance of the conductor is numerically equal to the potential difference across its end when unit current flows through it. बात समझ में आया? The resistance, the resistance of a conductor is actually equal to the potential difference across its end. कब? When unit current flows through it. बस यही बात है और कुछ नहीं। ये डेफिनेशन पूछेगा नहीं, बस सुन लो, पूछेगा नहीं, कभी नहीं पूछता ऐसा चीज, बस समझ में आना चाहिए आपको क्या लिखा है। ठीक है ओके। अब यहाँ पे आते हैं एक चीज, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस सब कर चुके हैं हम लोग, पर जस्ट यूनिट और कुछ है इसके बाद, खत्म नहीं होता यार। अच्छा ठीक है, जल्दी नहीं है, खत्म हो जाएगा, रुक जाओ और 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट खत्म हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, ओम, एंड सिंबल होता है कुछ ऐसा। फाइन फाइन। अब सुनो एक बात, ये आया कहां से, ये आया कहां से? देखो ओम्स लॉ जी क्या बोले हैं, ओम्स लॉ भैया बोलते हैं कि भैया V इज इक्वल्स टू आई आर, विच इंप्लाइज आई आर इज इक्वल्स टू V। तो R हो जा रहा है V बाई आई, R हो जा रहा है V बाई आई। तो यहां से हम बोल सकते हैं, याद है द वे वी हैड डिफाइंड द unit of current and the unit of potential difference, in a similar manner we'll do over here also. So can I say unit of resistance will be equal to unit of potential difference by unit of current? समझ में आया? But we just saw that the unit of potential difference is volt, and since we're talking about unity, let's write 1. Unit of current is ampere, and since we are talking about unity, let's write 1 over here. And we, and this is what is called, and this is what is called, and 1 volt by 1 ampere, 1 volt by 1 ampere is what is told as 1 ohm. 1 volt by 1 ampere is what is 1 volt by 1 ampere is read as 1 ohm. 1 volt by 1 ampere
बात समझ में आया? क्लियर? तो यहां से हम बोल सकते हैं, देखो इसको पढ़ के, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। कितना? 1 ohm if 1 ampere current flows through it when the potential difference of 1 volt is applied across the end of the conductor। बात समझ में आया? अगर आपके पास ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, एंड यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 1 एम्पियर। कब? when the potential difference between the ends of the conductor, जो पोटेंशियल डिफरेंस है between the ends of the, वो कितना है? 1 वोल्ट। इन दैट केस इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको कहते हैं 1 ओम। इससे आसान कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक कंडक्टर है जहां से करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, व्हेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट इज 1 वोल्ट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। दैट्स इट। वही यहाँ लिखा हुआ है, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग ये सब चीज। ठीक है, ओके। एंड द लार्जर यूनिट्स, देखो ऐसा यूनिट हो गया ओम, एंड द लार्जर यूनिट्स क्या होता है? किलो ओम, मतलब 10 to the power 3 ओम। मेगा, मेगा ओम हो जाएगा 10 to the power 6 ओम, एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। फाइनली लास्ट पार्ट, एक नया टर्म है जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस एंड इट्स एसआई यूनिट। सुन लो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस पता है हम लोग क्या होता है? अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें उसको कहा गया है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को अगर हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से, तो सी हो जाता है 1 बाई रेजिस्टेंस। बस वही, और कुछ नहीं यहाँ से जानना है आपको। आपको बस ये पता होना चाहिए कि रेजिस्ट कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल, दैट इज कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ही कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। बस इतना ही जानना है आपको। ठीक है, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट, सो द यूनिट of conductance will be equal to the reciprocal of the unit of resistance. And just now we had seen that the unit of resistance is ohm, so ये हो जाएगा ohm inverse। so please समझ लेना ऐसा यूनिट क्या होगा? ohm inverse, या फिर डायरेक्टली ohm to the power -1। फाइन, ओके। बस हो गया, इतना ही समझना, और कुछ नहीं करना है आपको। लंबा हो गया मुझे लग रहा है वीडियो। क्या करे यार, बोलो, मजाक करते करते टाइम बीत जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड तो करो भैया।